vector formulation की, but before moving on to vector formulation, first of all we need to understand what is a cross product. अगर आपको याद हो, when we were discussing the last topic of chapter number 2 which was dot product, उस वक्त हमने just एक brief discussion किया था कि दो वेक्टर्स का जब भी आप प्रोडक्ट लेते हैं तो दो तरह के प्रोडक्ट्स उनमें पॉसिबल हैं. वन इज द डॉट प्रोडक्ट जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, द अदर वन इज द क्रॉस प्रोडक्ट जिसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है. डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? बिकॉज बाय टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स वी आर गोइंग टू गेट अ स्केलर क्वांटिटी. However, once you are taking the cross product of two vectors, you are going to get another vector quantity. इसी वजह से cross product को vector product जो है वो कहा जाता है. अब ये cross product होता क्या है? Although आपने metric FSC में किया होगा, हम थोड़ा सा quickly इसको review कर लेते हैं. The cross product of two vectors A and B yields another vector C, which is written as vector C equal to vector A cross B, and read C equals A cross B. Now, since C is a vector quantity, so by the definition of a vector, it should have magnitude as well as direction. As far as the magnitude of this vector C is concerned, it is defined as the product of magnitudes of A and B vector as well as the sine of the angle theta between their tails. That is, the magnitude of C would be equal to AB sine of theta. Do you remember the magnitude of dot product? Dot product का magnitude क्या होता था जो chapter 2 में हमने पढ़ा था? Sir, A dot B cos theta. AB cos theta. However, the magnitude of the cross product is going to be AB sin of theta. तो जब आपसे कहा जाए कि दो वेक्टर्स आपस में उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, the magnitude of that cross product would be equal to the magnitude of A multiplied by magnitude of B and sine of the angle theta between their tails. So आपको यहाँ दिखाया भी गया है कि अगर आपके पास वेक्टर A है और वेक्टर B, ये दो वेक्टर्स हैं, इनकी टेल्स के दरमियान एंगल थीटा बन रहा है. So as per our discussion, the magnitude of C would be equal to magnitude of A into B into sine of theta, which is the angle between the tails of these two vectors. Clear है यहाँ तक magnitude का हर एक को? Okay, coming to the direction of this cross product. Now vector C has a direction that is perpendicular to the plane containing A and B such that C is specified by the right hand rule. जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो this vector C would have a direction which is perpendicular to the plane containing those two vectors A and B, and its direction is going to be found using the same right hand rule जो कि हमने पिछली स्लाइड्स में डिस्कस किया है. वो right hand rule क्या कहते हैं कि once you are curling your fingers in the direction from A towards B, यानी आप क्रॉस प्रोडक्ट A क्रॉस B ले रहे हैं ना, तो A से B के डायरेक्शन में जब आप कर्ल करेंगे तो आपका जो थंब है that is going to point out in the direction of this vector C. So vector C has a direction that is perpendicular to the plane containing A and B such that C is specified by the right hand rule, that is curling the fingers of this right hand from A to vector B, the thumb points out in the direction of C. So knowing both the magnitude and direction of C, now we can write this C vector as AB sin theta जो कि उसके magnitude को represent कर रहे हैं, and UC basically represents the direction of this C. अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास ये जो A और B वेक्टर हैं they are lying within the XY plane. So आपके पास ये XY plane है जिसमें ये दो वेक्टर्स लाई करते हैं. So what should be the direction of C now? जी, C कौन सी एक्सिस के अलोंग लाई करता है? Z एक्सिस के अलोंग. तो यूनिट वेक्टर UC के बजाय डायरेक्टली अगर Z एक्सिस आ रही है तो मैं उसको K के साथ जो है वो रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. अगर मैं आपसे कहूँ कि नाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट B क्रॉस A, ठीक है, तो B क्रॉस A को अगर आपने वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगा? BA साइन थीटा, तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया. डायरेक्शन क्या होगा B क्रॉस A का? एक्सिस के लॉन्ग ऑपोजिट डायरेक्शन क्या कहते हैं, सी के ऑपोजिट होगी इसकी डायरेक्शन, यानी आपके पास नेगेटिव यूसी बन जाएगा. नेगेटिव क्या आ जाएगा? इजंट इट? राइट हैंड रूल यूज करें ना, माइनस के. जी, B से A की तरफ फिंगर्स कर्ल करें तो द थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव Z एक्सिस. सो आप यूनिट वेक्टर माइनस K के साथ इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे. सो ओवरऑल B क्रॉस A आपके पास माइनस BA साइन ऑफ थीटा आ जाएगा. अब मुझे एक बात बताएं, क्या ये दोनों
एक दूसरे के बराबर हैं, फर्क कहाँ आ रहा है? एक नेगेटिव साइन का फर्क आ रहा है, isn't it? So does this cross product follows commutative law? No, sir. No, sir. Because A cross B is not equal to B cross A. Rather, A cross B किसके बराबर है? Minus B cross A. माइनस बी क्रॉस ए. सो आपके पास जो कम्यूटेटिव लॉ है, इट इज नॉट बीइंग फॉलोड बाय दिस क्रॉस प्रोडक्ट, बिकॉज अभी हमने देखा है ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है. रादर आपके पास ए क्रॉस बी जो है वो माइनस बी क्रॉस ए के बराबर आता है. अगर हम एसोसिएटिव लॉ की बात करें तो दिस क्रॉस प्रोडक्ट फॉलोज दिस एसोसिएटिव लॉ एज वेल एज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. तो डॉट प्रोडक्ट हमारा तीनों लॉज को फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. हाउएवर जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमारा कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को जो है वो फॉलो करता है. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. चलें, उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा कार्टेशियन वेक्टर फॉर्मूलेशन की. Now before moving on to the Cartesian vector formulation of this cross product, do you remember the Cartesian vector formulation of dot product? याद है कुछ A dot B की कार्टेशियन नोटेशन क्या आती थी? कोई एक स्टूडेंट जो बता सके? A B cos theta. नहीं, ये तो उसका वो मेन मैग्नीट्यूड आता था. अगर कार्टेशियन नोटेशन की बात करें, इट वाज ax bx plus ay by plus az bz. रिमेंबर? Yes, sir. ठीक है. तो इसी तरह हम जरा अब क्रॉस प्रोडक्ट की थोड़ी सी कार्टेशियन नोटेशन की जो है वो बात करते हैं. सो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी पेयर ऑफ कार्टेशियन यूनिट वेक्टर्स कैन बी डिटरमिन्ड बाय सिंपल, जिस तरह आपको यहाँ शो किया गया है. कैसे? इफ आई नीड टू टेक द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ से i क्रॉस i, सो दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, इनका मैग्नीट्यूड एज पर आवर डेफिनेशन 1 into 1 हो जाएगा. एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन i एंड i? Sir, 0 degree. 0 डिग्री. सो साइन 0 कितना होता है? 0 ही होता है सर. 0 होता है. इट मींस के जब हम i क्रॉस i या j क्रॉस j या k क्रॉस k यानी सिमिलर यूनिट वेक्टर्स की बात कर रहे होंगे तो देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी 0. ये पॉइंट क्लियर है हर एक को? इसके मुकाबले में अगर मैं कहूं i क्रॉस i के बजाय मैं i डॉट i कर रहा होता तो फिर क्या मिलना था मुझे? Sir, 1. वो 1 मिलना था. उसकी वजह क्या है कि डॉट प्रोडक्ट में हम cos यूज करते हैं. सो 1 into 1 cos 0 जब हम करते हैं तो हमारे पास 1 आ जाता है. सो i डॉट i 1 था, लेकिन i क्रॉस i आपके पास 0 आ जाता है. ओके, नाउ व्हेन यू आर टेकिंग द क्रॉस प्रोडक्ट्स ऑफ टू डिसिमिलर वेक्टर्स, सपोज मैं कहता हूं कि आपने i क्रॉस j करना है, सो इट इज गोइंग टू बी 1 into साइन ऑफ i और j के दरमियान एंगल कितना है? 90 डिग्रीज. तो आपके पास साइन 90 कितना होता है? 1, sir. 1 होता है. इट मींस के मैग्नीट्यूड तो इसका 1 आ गया. डायरेक्शन के लिए मैं राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करूं, मैं अपनी फिंगर्स को i से j की तरफ कर्ल करूंगा तो थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द z एक्सिस. सो मैं इसको लिख सकता हूं i क्रॉस j इज बेसिकली इक्वल टू k, इजंट इट? Yes, sir. सो आपने मैट्रिक एफएससी में ये जो छोटा सर्कल नीचे गिवन है इसके हवाले से पढ़ा हुआ है? Sir. मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ. डिफाइन क्या कर रहे हैं सर्कल कि once you are taking the cross product of vectors in a counter clockwise direction, यानी आप i cross j जब कर रहे हैं counter clockwise direction में, you are going to get the third unit vector with a positive thing. So I cross j is basically equal to k, j cross k is basically equal to I, k cross I is basically equal to j. Similarly, once you are moving along this circle in a clockwise direction, मतलब मैं आपसे कहता हूं कि आप I cross k कर रहे हैं, so आपको तीसरा वेक्टर मिलेगा with a negative quantity. So I cross k is minus j, k cross j is minus I, j cross I is minus k. तो जब आपको इन यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेना हो, जो कि आपको लेना पड़ेगा व्हेन यू आर डीलिंग विद 3 डायमेंशंस, तो आप जो है वो इस स्मॉलर सर्कल का इस्तेमाल कर रहे होंगे. दैट इज i क्रॉस j k के बराबर आएगा क्योंकि आप काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं. j क्रॉस k आपको i के बराबर मिलेगा एंड k क्रॉस i आपको j के बराबर मिलेगा. अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई दो यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मसलन i क्रॉस k, वो आपको तीसरा वेक्टर मिलेगा विद अ नेगेटिव साइन. सो i क्रॉस k इज माइनस j, k क्रॉस j इज माइनस i, j क्रॉस i इज
minus k. Is this point clear to all of you? Yes, sir. ठीक है, ऑल द मैट्रिक एफएससी में आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन जस्ट क्विकली हमने इसको रिव्यू कर लिया कि यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आप कैसे लेते हैं. सो क्रॉसिंग दीज यूनिट वेक्टर्स इन अ काउंटर क्लॉकवाइज फैशन अराउंड द सर्कल यील्ड्स पॉजिटिव थर्ड यूनिट वेक्टर. However, crossing these unit vectors in a clockwise fashion around this circle would yield a negative would yield a negative third unit vector. ठीक है. So now coming to the cross product of two general vectors a and b, I have written these vectors both of them in terms of their Cartesian notation axi plus ayj plus azk cross bxi plus byj plus bzk. अब क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करेंगे कि एक एक टर्म को आप मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे. पहली टर्म को ए की इसके साथ, उसी तरह फिर आपने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर आपने इसके साथ किया क्रॉस प्रोडक्ट. एक एक करके आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते चले जाएंगे. जिस तरह इससे पिछली साइड में बात हुई है, जहां जहां सिमिलर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है दे आर गोइंग टू बी इक्वल टू 0. सो जहां जहां आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे या के क्रॉस के आ रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0. इसके मुकाबले में जहां डिसिमिलर यूनिट वेक्टर्स आ रहे हैं उनको आप ये इस पर्टिकुलर तरीके से जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे होंगे. सो फाइनली द क्रॉस प्रोडक्ट वुड बिकम दिस वेक्टर AYBZ minus AZBYI, similarly something J or similarly something K. Now it is difficult to remember this particular notation. Rather, cross product को जब आप find कर रहे होते हैं तो there is a much easier method of finding the cross product, that is by using this determinant. ये determinant वाला idea है हर एक को, मैट्रिक एफएससी में आपने पढ़ा हुआ है ये? Yes sir. Yes, sir. इसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं, क्योंकि बजाय इसको कि इस चीज को मैं याद रखूं, मेरे लिए बेहतर क्या है कि जब जब मुझे दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेना हो तो मैं ये डिटर्मिनेंट वाला तरीका इस्तेमाल कर लूं. इट इज मच इजियर टू रिमेंबर. ये डिटर्मिनेंट वाला तरीका है क्या कि वंस यू आर टेकिंग द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, देन उसका क्रॉस प्रोडक्ट हम इस डिटर्मिनेंट की मदद से निकाल सकते हैं, जिसमें द फर्स्ट रो ऑफ दिस डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंट्स द यूनिट वेक्टर्स i, j and k. The second row represents the components of the first vector, जो कि आपका यहाँ a है, उसका तीनों components ax, ay और az आ जाएंगे. The second row represents the components, the third row represents the components of vector b, जो second vector है आपका bx, by, bz. इसी तरह अगर आप b क्रॉस a ले रहे होते तो यहाँ आपके पास b आ जाता और यहाँ आपके पास a आ जाता. तो इस तरह आप डिटर्मिनेंट की मदद से ये क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो ले सकते हैं. अब ये डिटर्मिनेंट की मदद से क्रॉस प्रोडक्ट लेते किस तरह है, जब आप इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, काइंडली मुझे बता सकते हैं वंस यू आर एक्सपेंडिंग दिस डिटर्मिनेंट व्हाट यू आर गोइंग टू गेट. सपोज आई से हम स्टार्ट करें, तो जब आप आई से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने आई वाली रो और कॉलम को, जी आई वाली रो और कॉलम को जो है वो डिलीट कर दिया. थोड़ा सा गौर से देख लें, रिवीजन हो जाएगी आपकी. सो जब आप आई के साथ लिख रहे हैं, आपने आई वाली रो और कॉलम को डिलीट कर दिया. आप करते क्या है कि क्रॉस में AYBZ, तो आपके पास AYBZ आ जाएगा माइनस दिस थिंग विच इज AZBY. यहां तक समझ आ गया है रेक को कि हमने आई के साथ किया क्या है? Yes, sir. ओके. सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, जब हमने जे को करना है तो जे वाली रो को हम और कॉलम को जो है वो कट कर देते हैं, लेकिन जे लिखते हुए सेकेंड टर्म है तो हम माइनस का साइन ऐड करते हैं. सो माइनस जे. अब उसी तरह ये टर्म्स माइनस दिस टर्म, सो AXBZ माइनस AZBX. इसी तरह जब हम थर्ड कर रहे हैं तो आपने किया क्या, थर्ड में आपने के वाली रो और कॉलम को जो है वो एलिमिनेट कर दिया. इट वुड कम्स आउट टू बी प्लस के और मल्टीप्लाइंग दिस माइनस दिस, सो AXBY माइनस AYBX. तो आपके पास यही टर्म आएगी जो कि इससे पहले हमने इंडिविजुअल यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेके की थी. तो सिंस दिस डिटर्मिनेंट मेथड इज मच इजियर टू रिमेंबर, तो हम जनरली अपनी जिन प्रॉब्लम्स में 3D आ रहा होगा उसमें हम इस डिटर्मिनेंट वाली फॉर्मुलेशन को जो है वो इस्तेमाल कर रहे होंगे. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. ठीक है. सो क्रॉस प्रोडक्ट के हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है. अब हम वेक्टर फॉर्मुलेशन के ऊपर जो है वो जाते हैं, बिकॉज वी आर यूजिंग दिस क्रॉस प्रोडक्ट नोटेशन
फॉर फाइंडिंग द वेक्टर फॉर्मुलेशन ऑफ मोमेंट। अच्छा, एक और बात, जब जब हमारे पास 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम्स आएंगे तो वी आर गोइंग टू यूज स्केलर फॉर्मुलेशन फॉर द सोल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम, क्योंकि 2 डायमेंशन के प्रॉब्लम स्केलर तरीके से ज़्यादा आराम से सॉल्व किए जा सकते हैं। जब जब आपके पास मोमेंट्स के प्रॉब्लम 3 डायमेंशनल में आएंगे तो देन यू आर गोइंग टू यूज द वेक्टर फॉर्मुलेशन। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्मुलेशन हम इस्तेमाल क्यों करते हैं कि जब 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना मुश्किल हो जाता है। 2 डायमेंशन में तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना चूंकि आसान है तो आप जो है वो स्केलर फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन 3 डायमेंशन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना मुश्किल हो जाता है तो फिर आप वो स्केलर फॉर्मुलेशन के बजाय वेक्टर फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल करते हैं।